اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، نشانی لے کر آیا ہوں، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، چنانچہ اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر محسوس کیا تو کہا کون اللہ تعالیٰ کی طرف میرا مددگار ہے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں اور آپ گواہ ہو جائیں کہ یقیناً ہم فرما بردار ہیں۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر محسوس کیا، یعنی یہ جان لیا کہ یہودی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تب انہوں نے یہ کہا کہ میرا مددگار کون ہوگا؟ حواریوں نے کہا، حواری کا وہی مفہوم ہے جو انصار کا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی اور دین کے مددگار۔ انہوں نے کہا ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب جو آپ نے نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے رسول کی پیروی کی ہے، چنانچہ ہمیں بھی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لیجئے۔ یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے بہتر ہے۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، وہ انہیں سولی چڑھانا چاہتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے ان پر الزام لگائے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، سجدے کرنا، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکنا، پاکیزگی اختیار کرنا، نیک ہونا، کتاب اور حکمت کی تعلیم حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم حاصل کرنا، کتاب کے احکامات کی تصدیق کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اس کی بندگی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کا مددگار بننا، اس پر ایمان لانا، رسول کی پیروی کرنا، حق کی گواہی دینا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا، اور جس چیز سے روکا خفیہ تدابیر کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے، یہ پختہ عزم کرنا ہے، شہادت حق یعنی حق کی گواہی دینی ہے، اور جائزہ لینا ہے کہ کیا میں حق کی گواہی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور رکو نمبر 14 ہے، حضرت عیسیٰ اور عیسائیت کے بارے میں حقائق کی وضاحت ہے۔ 4 بنیادی باتیں ہیں اس رکو میں، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی حقیقت، حضرت عیسیٰ کی واپسی، معجزات اور مباہلہ۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھانے کا فیصلہ کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ یقیناً میں تجھے قبض کرنے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں، اور ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تجھے پاک کرنے والا ہوں، اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا۔ پھر میری طرف تم سب کی واپسی ہے، سو میں تمہارے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ یہاں متوفی کا لفظ آیا ہے، پورا لینے والا ہوں، یعنی یہودیوں کی سازشوں سے بچا کر آسمانوں پر اٹھانے والا ہوں۔ پھر جن لوگوں نے کفر کیا انہیں میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو انہیں وہ پورے ان کے اجر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ ہے جو ہم پر حکمت آیات اور نصیحت میں سے تم پر پڑھتے ہیں۔ بلا شبہ عیسیٰ کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی جیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے بنایا، پھر اس سے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہی حق ہے تمہارے رب کی جانب سے، چنانچہ آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ پھر جو آپ سے اس میں جھگڑا کرے، اس کے بعد جو علم میں سے آپ کے پاس آ گیا تو آپ کہہ دو تم آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، اور اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں کو، اپنے آپ کو اور تمہیں بھی بلائیں، ہم گڑ گڑا کر دعا کریں، بس ہم جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجیں۔ بلا شبہ یہ یقیناً سچا بیان ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اگر وہ پھر بھی منہ موڑیں گے تو اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو یقیناً خوب جاننے والا ہے۔
इस रुकू में जिन कामों का हुक्म दिया गया, रसूलों की पैरवी करना, ईमान लाना और अमले स्वाले करना, और जिनसे रोका गया, रसूलों का इनकार, जुल्म करना, शक करना, इल्म के बारे में झगड़े करना, झूठ बोलना, हक से मुंह मोड़ना और फसाद करना। कमिटमेंट पॉइंट्स है, इंसानों की गुलामी से छुड़ाना है इंशाअल्लाह। रुकू नंबर 15 है, अहले किताब और मुसलमानों के दरमियान नजरियाती जंग है, और इसके 3 मेन पॉइंट्स हैं। अहले किताब को दावत, अहले किताब का हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में झगड़ा और अहले किताब की दुश्मनी। अंबिया की असल तालीम तौहीद है। रब्बुल इज्जत ने फरमाया, आप कह दें ए अहले किताब, उस कलमे की तरफ आओ जो हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान बराबर है, ये कि हम अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत ना करें और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं, और हम अल्लाह ताला के सिवा एक दूसरे को भी रब ना बनाएं। फिर अगर वो मुंह मोड़े तो आप कह दें कि तुम गवाह हो जाओ, बिलाशुबा हम मुसलमान हैं। इस कलमे से मुराद वो कलमा तौहीद है जिसकी बुनियाद पर हम सब मुत्तहिद हो सकते हैं, जिस पर तमाम रसूलों का इत्तिफाक है। ए अहले किताब, तुम इब्राहिम के बारे में क्यों झगड़ते हो, हालांकि तौरात और इंजील उसके बाद ही नाजिल की गई, क्या तुम समझते नहीं हो? यानी यहूदी और ईसाई दोनों ही दावा करते थे कि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर हैं और हम सच्चे हैं। हाँ, तुम वो लोग हो, तुमने इस बात में झगड़ा किया जिसका तुम्हें इल्म था, फिर उसके बारे में क्यों झगड़ा करते हो जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं, और अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। यानी इल्म के बगैर झगड़ा करना निहायत नापसंदीदा है। ऐसे मौजू पर बहस नहीं करनी चाहिए जिसका इल्म ना हो। इब्राहिम ना यहूदी थे और ना ईसाई, बल्कि वो यकसू मुसलमान थे और मुशरिकों में से नहीं थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में रब्बुल इज्जत की वजाहत है कि वो तौहीद परस्त थे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए यकसू थे। यकीनन लोगों में इब्राहिम के सबसे ज्यादा करीब वो हैं जिन्होंने उनकी पैरवी की, और ये नबी और वो लोग जो ईमान लाए, और अल्लाह ताला मोमिनों का दोस्त है। इब्राहिम के सबसे ज्यादा करीब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सच्चे मोमिन है, क्योंकि इस्लामी शरीयत मिल्लत हनीफ के सबसे करीब है। इसीलिए रब्बुल इज्जत ने मिल्लत इब्राहिमी की पैरवी करने का हुक्म दिया है। अहले किताब में से एक गिरोह ख्वाहिश रखता है कि काश वो तुम्हें गुमराह कर दें, हालांकि वो नहीं गुमराह कर रहे मगर अपनी जानों को, और वो शऊर नहीं रखते। अहले किताब, तुम अल्लाह ताला की आयात का कुफ्र क्यों करते हो, हालांकि तुम गवाही देते हो। अहले किताब, तुम हक को बातिल से गड़बड़ क्यों करते हो, और क्यों तुम हक को छुपाते हो हालांकि तुम जानते भी हो। इस रुकू में 5 चीजें जिनका हुक्म दिया गया, अल्लाह ताला के सिवा किसी की बंदगी ना करना, किसी को शरीक ना ठहराना, किसी को अपना रब ना बनाना, अंबिया की पैरवी करना, अल्लाह ताला के लिए यकसू होना, और जिन चीजों से रोका गया बगैर इल्म के बहसें करना, शिर्क करना, इंसानों को सीधे रास्ते से हटाने की कोशिशें करना, गुमराही की रविश इख्तियार करना, हक पर बातिल का रंग चढ़ाकर मुश्तबे बनाना, जानते बूझते हक को छुपाना। कमिटमेंट पॉइंट्स हैं। कुरान मजीद ही महफूज पनाहगाह है। अहले किताब, यहूदियों और ईसाइयों की साजिशों से बचने के लिए मैंने इस कुरान को समझना है, इसके पैगाम को फैलाना है। ईमान का रिश्ता ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नजदीक सबसे अहम है, और कुरान के दामन में उम्मत मुस्लिमा को पनाह दिलवाने के लिए उम्मत को मुनज़्ज़म तरीके से कुरान के रास्ते पर लाना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौफीक अता फरमाए। रुकू नंबर 16 है, अहले किताब और अहले इस्लाम के तर्ज अमल की वजाहत है। 2 बातें हैं इस रुकू में, अहले किताब और अल्लाह के यहाँ नजात पाने वाले। सबसे पहले तज़किरा है यहूदियों की साजिश का, और अहले किताब में से एक गिरोह ने कहा कि दिन के आगाज में तुम उस पर ईमान लाओ जो नाजिल किया गया उन पर जो ईमान लाए, और तुम उसकी शाम को कुफ्र करो ताकि वो वापस लौटें। यहूदियों की एक साजिश थी, बाहमी मशवरे से तय करते थे कि जब लोग सुबह को जाके कहेंगे कि हमने मान लिया जो आप कहते हैं, और शाम को इनकार करेंगे, तो बहुत से लोग दीन में नक्स तलाश करने लगेंगे। फिर फरमाया, और तुम किसी का यकीन ना करो सिवाय उसके जो तुम्हारे दीन की इत्तिबा करे। आप कह दो यकीनन हिदायत तो अल्लाह ताला ही की हिदायत है, ये ना मानना कि किसी एक को उस जैसा दिया जाए जो तुम्हें दिया गया था, या वो तुमसे तुम्हारे रब के पास झगड़ा करेंगे।
आप कह दें यकीनन अल्लाह ताला ही के हाथ में फजल है, जिसको वो चाहता है अता करता है। और अल्लाह ताला बड़ी वुसअत वाला, सब कुछ जानने वाला है। वो जिसको चाहता है अपनी रहमत से खास कर लेता है। और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। रहमत से खास करने से मुराद है किसी को अपने दीन की नुमाइंदगी के लिए कबूल करना। और यहूदियों के किरदार पर तबसरा है। और अहले किताब में से ऐसे भी हैं कि आप अगर उसको एक खजाने का अमीन बना दो तो भी वो उसको अदा कर देगा। और उनमें ऐसे भी हैं अगर आप उसको 1 दीनार भी अमानत के तौर पर दो तो भी वो आपको उस वक्त तक अदा नहीं करेगा मगर जब तक आप उनके सर पर खड़े रहो। उसकी वजह यह है कि यकीनन उन्होंने कहा कि अनपढ़ों के बारे में हम पर कोई रास्ता नहीं, और वो अल्लाह ताला पर झूठ कहते हैं हालांकि वो जानते हैं। क्यों नहीं, जो भी अपना अहद पूरा करे और अल्लाह ताला से डरे तो बिलाशुबा अल्लाह ताला डरने वालों से मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला अहद पूरा करने को पसंद करते हैं और हराम की हुई चीजों से रुकने को पसंद करते हैं। अल्लाह ताला अपने से खौफ खाने को पसंद करते हैं। अल्लाह ताला मुत्तकियों से मोहब्बत करते हैं। फिर फरमाया यकीनन जो लोग अल्लाह ताला के अहद और अपनी कसमों के बदले थोड़ी कीमत लेते हैं, यही वो लोग हैं जिनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा ना होगा और अल्लाह ताला ना उनसे बात करेगा और ना ही कयामत के दिन उनकी तरफ देखेगा और ना ही उनको पाक करेगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। यहूदी अल्लाह ताला पर झूठ बोलते हैं और बिलाशुबा उनमें यकीनन एक गिरोह वो है जो किताब पढ़ते हुए अपनी जुबानों को मरोड़ते हैं ताकि तुम उसे भी किताब ही समझो, हालांकि वो किताब में से नहीं है। और वो कहते हैं कि ये अल्लाह ताला की जानिब से, हालांकि वो अल्लाह ताला की जानिब से नहीं। और वो अल्लाह ताला पर झूठ कहते हैं हालांकि वो जानते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रब्बानी यानी रब वाला बनने का हुक्म दिया। किसी इंसान का ये हक नहीं कि अल्लाह ताला उसे किताब, हिकमत और नबुव्वत दे, फिर वो लोगों से कहे अल्लाह ताला को छोड़कर मेरे बंदे बन जाओ। वो तो कहेगा रब वाले बन जाओ, इस वजह से जो तुम किताब से खाते थे और इस वजह से जो तुम पढ़ते थे। किसी इंसान के लायक नहीं है कि अल्लाह ताला के मुकाबले में खुद अपनी बंदगी पर लोगों को आमादा करे, और ना ही वो तुम्हें यह हुक्म देगा कि तुम फरिश्तों और नबियों को रब बनाओ। क्या वो तुम्हें कुफ्र का हुक्म देगा इसके बाद कि तुम फर्मा बरदार हो? कोई नबी फरिश्तों और नबियों को रब बनाने की दावत नहीं देता। करने वाले काम है अमानत अदा करना, अहद की पाबंदी करना, अल्लाह ताला से डरना, किताब और हिकमत की तालीम हासिल करना, अल्लाह ताला का बनकर रहना, इंसानों को अल्लाह वाला बनने की दावत देना, दूसरों को किताब की तालीम देना, किताब को हमेशा सीखते रहना, तकवा इख्तियार करना। और जिन कामों से रोका है सुबह ईमान लाना और शाम को इनकार करना, ईमान से फिर जाना, तासुब में मुब्तला होना, अमानत अदा करने में अपनी जिम्मेदारी महसूस न करना, झूठ बोलना, अल्लाह ताला पर झूठ बांधना, अहद को बेच डालना, कसमों को बेच डालना, अपनी जुबानों को तोड़ मरोड़ कर दूसरों को फरेब देना, इंसानों को हुक्म देना कि वो फरिश्तों और पैगंबरों को रब बनाए। कमिटमेंट पॉइंट्स है, अहद की जिंदगी को निभाना है और उसके लिए अल्लाह सुब्हान व तआला की फर्मा बरदारी करनी है और शरीयत की आयत करदा तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करना है। नफा और नुकसान को नजरअंदाज करके अहद की जिंदगी इख्तियार करनी है। दुनिया पर आखिरत को तरजीह देना है इंशाअल्लाह। रुकू नंबर 17 है, इस्लाम के मां सिवा कोई तरीका जिंदगी काबिल कबूल नहीं। दो बातें हैं, पैगंबरों से लिया जाने वाला अहद और इस्लाम के मां सिवा कोई तरीका काबिल कबूल नहीं है। और जब अल्लाह ताला ने नबियों से पुख्ता अहद लिया कि यकीनन मैं तुम्हें किताब और हिकमत में से अता करूंगा, फिर तुम्हारे पास एक रसूल आ जाए जो तस्दीक करने वाला हो उसके लिए जो तुम्हारे पास है, तो तुम लाजमन उस पर ईमान लाओगे और तुम जरूर उसकी मदद करोगे। अल्लाह ताला ने फरमाया क्या तुम इकरार करते हो और इस पर मेरा अहद कबूल करते हो? उन्होंने कहा हमने इकरार किया। फरमाया फिर गवाह रहो और मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अहद लिया था कि बाद में आने वाले रसूल की ताईद पहले आने वाले रसूल करेंगे। फिर इसके बाद जिस शख्स ने मुंह मोड़ा तो वही लोग नाफरमान है। अफगैर दीनिल्लाहि
यबगूना वलहु अस्लम मन फिस समावाति वल अर्द तौआ व करहम व इलैहि युरजऊन। क्या वो अल्लाह ताला के दीन के सिवा किसी और को तलाश करते हैं? यानी आपको कोई और लाइफस्टाइल चाहिए, जो आपके रब ने आपके लिए पसंद किया उसको आप छोड़ना चाहते हो, हालांकि आसमानों और जमीन की हर चीज खुशी या नाखुशी से उसकी फर्मा बरदारी करती है और उसी की तरफ वो लौटाए जाएंगे। अल्लाह ताला ने ईमान, इताअत और अंबिया के दरमियान फर्क न करने का हुक्म दिया। आप कह दो हम अल्लाह ताला पर ईमान लाए और उस पर भी जो हमारे ऊपर नाजिल किया गया और उस पर भी जो इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद पर नाजिल किया गया और उस पर भी जो मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम और तमाम अंबिया को उनके रब की तरफ से दिया गया, हम उनमें से किसी एक के दरमियान भी फर्क नहीं करते और हम उसी की इताअत करने वाले हैं। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। और जो शख्स इस्लाम के अलावा कोई और दीन तलाश करेगा तो उससे वो हरगिज कबूल न किया जाएगा और वो आखिरत में खसारा उठाने वालों में से होगा। सईद आयशा से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स ऐसा काम करेगा जिसके लिए हमारा हुक्म ना हो, यानी दीन में ऐसा अमल निकाले, तो वो मरदूद है। और अल्लाह ताला उन लोगों को कैसे हिदायत देगा जिन्होंने ईमान लाने के बाद कुफ्र किया, हालांकि उन्होंने गवाही दी कि यकीनन रसूल सच्चा है और उनके पास वाज़ेह दलीलें भी आ चुकी थी। और अल्लाह ताला जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। ये लोग, यही सजा है उनकी कि यकीनन उन पर अल्लाह ताला की और फरिश्तों की और सारे इंसानों की लानत है, इसमें वो हमेशा रहने वाले हैं। उनसे अजाब हल्का न किया जाएगा और ना वो मोहलत दिए जाएंगे, मगर जिन लोगों ने इसके बाद तौबा की और अपनी इस्लाह की तो बिलाशुबा अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला, निहायत रहम वाला है। यकीनन जिन लोगों ने अपने ईमान के बाद कुफ्र किया फिर कुफ्र में बढ़ते ही गए, उनकी तौबा हरगिज कबूल न की जाएगी और वही लोग गुमराह हैं। यकीनन जिन लोगों ने कुफ्र किया और मर गए इस हाल में कि काफिर थे, तो उनमें से किसी एक से जमीन भर सोना भी हरगिज कबूल न किया जाएगा और अगरचे वो उसको फिदिये में दे। यही लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अजाब है और उनके लिए कोई मददगार ना होगा। करने वाले काम है रसूलों पर ईमान लाना, उनकी मदद करना, अल्लाह ताला के अहद को कबूल करना, अहद का इकरार करना, अल्लाह ताला पर ईमान लाना, उसकी किताबों पर ईमान लाना, अंबिया के दरमियान फर्क न करना, अल्लाह ताला का फर्मा बरदार बनना, रसूलों के हक पर होने की गवाही देना, तौबा करना, इस्लाह करना और जिन कामों से रोका गया अहद से फिरना, ईमान लाने के बाद इनकार करना, अल्लाह ताला के दीन के सिवा कोई और दीन चाहना, जुल्म करना, गुमराही इख्तियार करना। और कमिटमेंट पॉइंट्स हैं, अल्लाह ताला ने जो अहद रसूलों से लिया उसको निभाने की जिम्मेदारी हम पर भी है। अहद की जिम्मेदारी को कबूल भी करना है और इस अहद को वफा भी करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हान व तआला हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब।
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. الہی خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، تیری رحمت کے امیدوار ہیں. اے پاک پروردگار ہماری خطاؤں گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہمیں اپنے خاص فضل و کرم سے صالح اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے یا ارحم الراحمین. خشوع والی نمازیں اور الہی ایسے روزے نصیب کر دیجئے جس کے بعد آپ پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں. ہمیں قیام اللیل نصیب کر دیجئے. الہی رمضان کی آمد میں چند گھڑیاں باقی ہیں، اے پاک پروردگار ہمیں برکتوں والا رمضان نصیب کیجئے. الہی ہم سب کو اپنے قرآن کی سچی سمجھ نصیب فرما دیجئے، اس قرآن پر عمل کرنا نصیب فرما دیجئے. اے پاک پروردگار ہماری اولادوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجئے یا ارحم الراحمین. موت کے وقت تک ایمان نصیب کرنا اور الہی ہم سب کو قبر کے معاملات میں الہی ثابت قدم رکھنا اور الہی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا. الہی پاکستان کو مضبوط اور خوشحال پاکستان بنا دینا. الہی پاکستان کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے بچا لینا یا ارحم الراحمین. آپ سے استدعا ہے پاکستان کو اکنامک کرائسس سے نکال دینا. اے پاک پروردگار مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی، الہی وسعتوں والا رزق نصیب کر دینا. الہی تو گناہ معاف کر دے، الہی تو رزق میں وسعت عطا فرما دے. الہی تو اس کتاب کی سمجھ کے دروازے ہر دل کے لیے کھول دے اور الہی اس کتاب کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور الہی جو دعائیں ہم نے مانگی، جو مانگنے سے رہ گئیں، الہی سب دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین، الہی آمین. السلام علیکم. بس آپ کا آدھا منٹ ہوئی. الحمدللہ ہم نے آپ